ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਦਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਿੰਟਰ ਸੋਲਿਸਟਿਸ ਡੇ, ਵਿੰਟਰ ਸੋਲਿਸਟਿਸ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੂਪੀਟਰ ਔਰ ਸੈਟਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 16 ਜੁਲਾਈ 1623 ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 2080 ਤੱਕ, ਮਾਰਚ 15 2080 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ 22 ਦਸੰਬਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਦਾ 125th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀਨੀਅਸ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਾ ਰਾਮਾਨੁਜਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ S ਰਾਮਾਨੁਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਔਰੋਜ਼ੋ, ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਔਰੋਜ਼ੋ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ, ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ITBP ਦੇ, ITBP ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ITBP ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨੇ? SS ਦੇਸਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸਵਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ BSF ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ BSF ਹੋ ਗਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 51ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਇਸ ਨੂੰ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਹਾਟੀ, ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਹਾਟੀ, ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Indian Navy has signed an agreement with Indian National Center for Ocean Information Services। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਓਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ? ਓਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਫਰਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਲਮਫੇਅਰ OTT ਅਵਾਰਡ 2020 ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਰੁਣ ਔਰ ਪਰੂਸ਼ਿਤ ਰॉय ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ, ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ DK ਔਰ ਰਾਜ ਨਿਧੀ ਮੋਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੈਦੀਪ ਅਹਿਲਾਵਤ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਲਈ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰੈਸ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ ਆਰਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਮਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।
ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਇਨ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬੈਸਟ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਰਾਤ ਅਕੇਲੀ ਹੈ ਮੂਵੀ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਿਕ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਨੇ, ਵੂਮਨ ਰੈਸਲਰ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬੈਲਗਰੇਡ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੈਲਗਰੇਡ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੂ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਰੈਸਲਰ ਨੇ। ਮੈਡਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ? ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ। ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਸੇਲੋਨਾ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 643 ਗੋਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ। 643 ਗੋਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੇਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਪੇਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੇਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਦੁਆਰਾ केट जैसिका फूकून जो कि एक मॉरिशियस बैडमिंटन प्लेयर ने, इन्होंने 2 साल के लिए बैन किया गया। इकरा द्वारा इंडिया की GDP फोरकास्ट की गई है -7.8%। अमित चड्डा MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं L&T कंपनी के CEO कौन अपॉइंट किए गए? अमित चड्डा अपॉइंट किए गए। गौरव आलूवालिया ने जिहड़े इंडिया के नैक्सट एंबेसडर टू अल्जेरिया। मोबीक्विक द्वारा सिद्धार्थ दमीजा नूं CEO ऑफ जाकपे। वेदांत पटेल इंडियन अमेरिकन जो बिडन द्वारा एडिशनल प्रेस सैक्रटरी USA के एडिशनल प्रेस सैक्रटरी कौन अपॉइंट किए गए? वेदांत पटेल। ट्रॉली टाइम्स एक बाई वीकली न्यूज़ लैटर है, इसनों लॉन्च किया गया फार्मर्स द्वारा ਜਿਹੜੇ कि प्रोटेस्ट ਤੇ ਨੇ न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ। क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूज़ लैटर का नाम ट्रॉली टाइम्स किन्नी लैंग्वेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ? तो 2 लैंग्वेजेस हिंदी पंजाबी। फर्स्ट एडिशन कदों लॉन्च किया गया? तो 19 दिसंबर 2020 ਨੂੰ। ठीक है जी। इसी ਦੇ ਨਾਲ एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ ही ਇੱਥੇ डिस्कस कर लेने कि IT सैल इन्हों द्वारा IT सैल भी डेवलप किया गया है ताकि जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट के रिलेटेड जी फेक न्यूज़ ने उन्होंने रोकया जा सके। ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी लॉन्च किया गया, इनोग्रेट किया गया APJ अब्दुल कलाम लैब DRDO हैदराबाद दे विच। APJ अब्दुल कलाम लैब DRDO हैदराबाद दे विच। और इंडिया को इस तरीके की फैसिलिटी तो तीसरा देश बन चुके हैं USA और रशिया तो बाद। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा दे लवे है, इन्हों द्वारा इनोग्रेट की गई 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम। ट्राइब्स इंडिया शोरूम किन्ना द्वारा लॉन्च किए गए? अर्जुन मुंडा द्वारा। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है खुंती झारखंड तो लोक सभा MP ने। और दोनों ट्राइब्स इंडिया शोरूम कित्थे लॉन्च किए गए हैं? तो एक कोलकाता दे विच और दूसरा गवालियर दे विच। कोलकाता और गवालियर दे विच इसनूं लॉन्च किया गया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा 4 इंडिजीनियस गेम्स नूं ऐड किया गया। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने जिहड़े 2021 दे विच कित्थे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? पंचकुला हरियाणा दे विच। ठीक है जी। इस दे विच 4 गेमां नूं ऐड किया गया। किहड़ियां 4 गेमां? गत्तका, पंजाब दी गत्तका नूं ऐड किया गया। कलारी पायाटू जो कि केरला दी है। थांगता मणिपुर दी है। और मलखम MP और महाराष्ट्र दी है। ठीक है। बेसिकली अगर गल करते हैं क्वेश्चन इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है कि थांगटा जी स्पोर्ट्स गेम है कित्थे फेमस है? तो मणिपुर दी है। ठीक है। इसी तरीके नाल कलारी पयाटू तो केरला दी है। गत्तका बारे हर एक नूं पता होगा पंजाब दी है। और मलखम है जिहड़ी MP और महाराष्ट्र के एरिया दे विच खेली जाती है। शक्ति सिन्हा द्वारा एक बुक लिखी गई प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा भी एक बुक लॉन्च की गई रिपोर्टिंग इंडिया जिसनों लिखिया ANI के चेयरमैन प्रेम प्रकाश ने। ANI चेयरमैन प्रेम प्रकाश।
ANI यानी कि एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ PS ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਪਿੱਲਈ ਦੁਆਰਾ। कैलाश सत्यार्थी द्वारा बुक लिखी गई कोविड-19 क्राइसिस एंड सॉल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन। जयराम रमेश द्वारा बुक लिखी गई द लाइट ऑफ एशिया द बुक दैट डिफाइंड बुद्धा। करीना कपूर खान इन्हां द्वारा प्रेगनेंसी बाइबल नाम की बुक नूं अनाउंस किया गया। नैक्सट है इंडिया द्वारा 9 मैडल जिते गए ने, 3 गोल्ड मैडल्स, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज। कित्थे जिते गए तो इसनूं क्लॉगनी बॉक्सिंग वर्ल्ड कप क्लॉगने ऑर्गेनाइज किया गया कोल्न जर्मनी दे विच। 3 गोल्ड मैडल इंपोर्टेंट बनने गए, किन्ना ने जीते ने तो 1 मेल 2 फीमेल। मेल कैटेगरी अमित पंगल, फीमेल्स दे विच मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर। यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा न्यूक्लीयर प्लांट अनाउंस किया गया कि मून के उत्ते एक न्यूक्लीयर प्लांट लगाया जाएगा। नासा की हेल्प के नाल टारगेट अनाउंस किया गया 2027 का। यूएसए द्वारा ही यूएस स्पेस फोर्स का फर्स्ट ईयर पूरा किया गया 18 दिसंबर नूं और इन्हों गार्डियंस के नाम तो जानिया जाता है। अहमद बिन अली स्टेडियम इन अल रयान। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जाएगा, अहमद बिन अली स्टेडियम कित्थे है? यह कतर दे विच है, कतर दे अल रयान सिटी दे विच है। फीफा दे लई इसनूं वेन्यू डिक्लेयर किया गया है और इंडिया की बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन फर्म है जिहड़ी LNT द्वारा इसनूं बनाया गया। नेपाल प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने इन्हां द्वारा पार्लीमेंट नूं डिसोल्व किया गया। बेसिकली नेपाल है जिहड़ा नेपाल दे विच 2022 तक पार्लीमेंट रहनी सी, जिहड़ी करंट पार्लीमेंट चल रही है तो यह 2022 तक रहनी सी, पर 2 साल पहले ही इसनूं डिसोल्व कर दिता गया। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इत्थे पार्लीमेंट नूं की कहंदे ने, तो नैशनल असैंबली या राष्ट्रीय सभा के नाम नाल इसनूं जानिया जांदा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा मास्क मैंडेटरी किया गया 6 महीनों के लिए और नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा एक मेगा लैदर पार्क अनाउंस किया गया जिसनूं रैमपुर कानपुर दे विच बनाया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट द्वारा ही विरासत अनाउंस किया गया एक स्पैशल कैंपेन लैंड रिलेटेड इश्यूज़ नूं सॉल्व करने के लिए। नागालैंड द्वारा पॉलीविनाइल क्लोराइड या कह सकते हैं फ्लैक्स बैनर्स नूं बैन किया गया है एनवायरनमेंट नूं प्रोटैक्ट करने के लिए, क्योंकि पॉलीविनाइल क्लोराइड तो बने होंगे ने फ्लैक्स बैनर्स और यह नॉन बायोडिग्रेडेबल ने। अमर सिंह कॉलेज, ये न्यूज़ काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी। अमर सिंह कॉलेज है जिहड़ा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का है, इसने 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिते हैं। 2020 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिते हैं कल्चरल हैरीटेज कंजरवेशन के लिए। स्टैटिक पोर्शन के नैशनल पार्क डिस्कस कर रहे हैं तो उड़ीसा भीतरकनिका, सिमलीपाल और नंदनकनन। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकनन नेशनल पार्क कित्थे है? उड़ीसा दे विच है। राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क, दारा नेशनल पार्क, कोलेदियो नेशनल पार्क, घाना रणथंबोर और सरिस्का नेशनल पार्क कित्थे है? राजस्थान दे विच। सिक्किम दे विच इकलौता नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तमिलनाडु आप डिस्कस किया हुआ तमिलनाडु रिलेटेड ट्रिक एक कि मलाई, जिथे मलाई वर्ड है वो तमिलनाडु के नाल जुड़िया हुआ है, तो मधु मलाई और अन्ना मलाई, पहले तो 2 नाम ये रखांगे, मधु मलाई और अन्ना मलाई। इस तो इलावा गुंडे, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, मुकुर्थी और पलानी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु दे विच है। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे किसान दिवस। अज के दिन की गल करते हैं तो 23 दिसंबर नूं किसान दिवस के रूप में हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी। 23 दिसंबर है, किसान दिवस ऑब्जर्व किया जाता है नैशनल फार्मर्स डे के रूप में। नैशनल फार्मर्स डे या कह सकते हैं किसान दिवस।
ये बेसिकली जिहड़ा दिन है ये क्यों अज दे दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। किन्ना दी? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कौन सी? चौधरी चरण सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सी। किन्नवें प्राइम मिनिस्टर सी? तो पंजवें प्राइम मिनिस्टर सी। इंडिया के पंजवें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, इन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर किसान दिवस या नैशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन है, काफ़ी रेयर चांसिस है वैसे पूछण दे, पर आप डिस्कस कर लें कि इन्हां दी जिहड़ी कह सकते सीमेंट्री है या कहना भी क्रीमेशन ग्राउंड है, क्रीमेशन ग्राउंड है, क्रीमेशन ग्राउंड एक सही वर्ड रहेगा, तो क्रीमेशन ग्राउंड नूं की कहा जाता है। ठीक है, इन्हां दे क्रीमेशन ग्राउंड नूं की कहा जाता है, एक कमेंट बॉक्स दे विच दसना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शनस अगर आप गल करिए तो 19 दिसंबर 19 दिसंबर नूं आपां ने डे डिस्कस किया सी गोवा का लिबरेशन डे। 20 दिसंबर नूं आपां ने डिस्कस किया इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया गया? 20 दिसंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। 21 दिसंबर नूं विंटर सोलिस्टिस डे आपां डिस्कस किया, हुणे डिस्कस करके हटे हैं। 22 दिसंबर नूं आपां की डिस्कस किया? नैशनल मैथेमैटिक्स डे, याद रखांगे। इस तो इलावा 25 दिसंबर आ रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। 25 दिसंबर नूं इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट डे ऑब्जर्व करता है, और भी आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, हु हैज़ नेम्ड बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किन्हां नूं नामित किया गया? नामित किया गया लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 कार रेसर, ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज़ कार के लिए ड्राइव करते हैं। लुइस हैमिल्टन ग्रैंड प्रिक्स की गल करते हैं, साल के ज़्यादातर ग्रैंड प्रिक्स इन्हों द्वारा जीते गए हैं हर साल की तरह, और इन्होंने लुइस शमाकर का जोड़ा रिकॉर्ड सीगा इन्हों तोड़िया, इन्हों के बराबर पहुँच चुके हैं लुइस बेसिकली कह सकते हैं कि जोड़े तकरीबन 7 जोड़े इन्हों की वर्ल्ड चैंपीयनशिप सीगियां उन्होंने ये बराबर आ चुके हैं। इस तो इलावा क्रिस्टीआनो रोनाल्डो फुटबॉल तो बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल तो बिलोंग करते हैं। लियोनल मैसी अर्जेंटीना तो बिलोंग करते हैं, फुटबॉल तो ही बिलोंग करते हैं। विराट कोहली क्रिकेटर इंडियन तो बिलोंग करते हैं। रोजर फेडरर, अच्छा रोजर फेडरर की कंट्री तुसीं दसनी है, रोजर फेडरर की कंट्री तुसीं दसोगे किहड़ी स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं? टैनिस तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इन्हों का नाम इन्हों की कंट्री में क्यों नहीं दस रहा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इन्हों के बारे कल की क्लास के आप डिस्कस, अच्छा कल तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो रोजर फेडरर बारे एक चीज़ मैं आप कल डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन्हों का नाम, इन्हों के नाम के उत्ते सिक्का चलता है, कहने इन्हों नाम के उत्ते सिक्का चलता है, तो वह डिस्कस करांगे। वेयर इज़ द हैडकुआटर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर? IUCN का हैडकुआटर कितने है? IUCN दोबारा एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि न्यूज़ जारी की गई, तो उसके बारे डिस्कस करांगे। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि IUCN का हैडकुआटर कितने है? तो इसका हैडकुआटर है ग्लैंड। ग्लैंड सिटी कितने है? ग्लैंड सिटी स्विट्जरलैंड के विच, स्विट्जरलैंड के विच ग्लैंड है। ग्लैंड का ग्लैंड के विच IUCN का हैडकुआटर है। ठीक है जी, डिस्कस कर लें। इस तो इलावा पहले डिस्कस करते हैं रोम। रोम इटली के विच आपां डिस्कस किया होया FAO का हैडकुआटर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 75 ईयर्स रिसेंटली पूरे हुए सी 16 अक्तूबर 1945 के विच इसनूं बनाया गया सी। क्यू डोंगियू इस दे हैड ने। इस तो इलावा रोम इटली के विच वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हैडकुआटर है, जिसनूं नोबल पीस प्राइज़ दिता गया 2020 का। जुरीच स्विट्जरलैंड के विच फीफा का हैडकुआटर है। फीफा का हैडकुआटर जुरीच स्विट्जरलैंड के विच गियानी इन्फेंटिनो इस दे हैड ने। इंडिया की रैंकिंग 104 है। मॉन्ट्रियल कैनेडा के विच वाडा का हैडकुआटर है। वाडा का हैडकुआटर मॉन्ट्रियल कैनेडा के विच है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखांगे, वाडा नूं 1 मिलियन की अनाउंसमेंट की गई है इंडिया द्वारा। मैड्रिड स्पेन के विच किसका हैडकुआटर है? मैड्रिड स्पेन के विच जिहड़ा हैडकुआटर है वो किसदा है? UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर मैड्रिड स्पेन के विच है। न्यूज़ की है डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर
जिसने डिक्लेयर किया है हिमालयन ट्रिलियम एक कॉमन हब है जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ठीक है, ये बेसिकली इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान इन्होंने कंट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ पाई जाती है। एंडेंजर्ड कैटेगरी यानी कि इसकी जी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन है वो घट है और यूसेज ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं क्योंकि एक कॉमन हब है। हब यानी कि मैडिसिन वगैरह के इसनू यूज़ किया जाता है और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने करके कह सकते हैं कि इसकी जी प्रोडक्शन है वो काफ़ी घट हो चुकी है और यूसेज ज़्यादा होने करके इसनू एंडेंजर्ड कैटेगरी के ऐड किया गया। क्वेश्चन दो तरीके नाल पूछा जा सकता है, एक तो इसका हैडकुआटर पूछा जाएगा IUCN का, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके नाल पूछा जा सकता है कि हिमालयन ट्रिलियम है जिहड़ा इसनू एंडेंजर्ड कैटेगरी के ऐड किया गया है, एक की है, एक एनीमल स्पीसीज़ है, एक प्लांट स्पीसीज़ है या एक बर्ड की स्पीसीज़ है। तो इस तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो की है एक प्लांट है, हर्ब है। नेक्स्ट है हु विल लॉन्च सेहत हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द यूनियन टैरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की अगर आप गल करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर दे विच स्कीम लॉन्च की जा रही है सेहत स्कीम। सेहत स्कीम की है, एक हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कौन लॉन्च कर रहा है इसनू? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेहत स्कीम लॉन्च करने जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बेसिकली जी प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना है, जन आरोग्य योजना उसके ਜਿਹੜੇ बेनीफिशरीज नहीं बन सकते जी स्कीम के, तो उन्होंने लिए सेहत स्कीम लॉन्च की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड एक होर न्यूज़ है वो आप अगे डिस्कस करांगे। इस तो इलावा नरेंद्र मोदी वाराणसी यूपी तो लोक सभा MP ने दो न्यूज़ होर ने इन्होंने रिलेटेड और डिस्कस करते हैं। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ने, मनोज सिन्हा लैफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू एंड कश्मीर दे, RK माथुर लद्दाख दे लैफ्टिनेंट गवर्नर ने और जितेंद्र सिंह डोनर मिनिस्टर ने यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही इंडिया इंटरनेशनल साइंस फैसटिवल 2020 ਨੂੰ भी एड्रैस किया गया। कल के दिन की अगर आप गल करते हैं अंदर थीम साइंस फॉर सैल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वैलफेयर। बेसिकली इंडिया इंटरनेशनल साइंस फिल्म फैसटिवल है जिहड़ा ये वर्चुअल फॉर्म के ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसकी थीम रही सी, थीम इंपोर्टेंट बनेगी साइंस फॉर सैल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वैलफेयर। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस दे विच भी एड्रैस किया गया, जिसका पहला एडिशन इस बार बेसिकली वर्चुअल फॉर्म के ऑर्गेनाइज किया गया, पर जो इसका फर्स्ट एडिशन सीगा बोध गया 2015 दे विच ऑर्गेनाइज किया गया सी। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ 231 million लोन टू कंस्ट्रक्ट द लोअर कोपिली हाइड्रो पावर प्लांट इन असम की गल करते हैं। असम स्टेट गौरमेंट की तो 231 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया, 231 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया लोअर कोपिली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। किहड़े बैंक द्वारा? ADB द्वारा। ठीक है जी, ADB की गल करते हैं, पहले भी डिस्कस किया है कि ADB काफ़ी ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रही है इंडिया नू। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैडकुआटर मैट्रो मनीला फिलीपीनस दे विच, मंडालुयोंग फिलीपीनस कह सकते हैं। इस तो इलावा 68 मैंबर कंट्रीज़ मासात्सुगु आसाकावा इसके हैड ने, जापान तो बिलोंग करते हैं। इस तो इलावा वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली इसके अशोक लवासा अपॉइंट किए गए सी, इन्हों का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है जी, इस तो इलावा असम रिलेटेड भी एक होर न्यूज़ है, सैशन के एंड में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक के हैड ने डेविड मलपास 13th नंबर के हैड और IMF के हैड ने क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इस तो इलावा दोनों के 190 मैंबर कंट्रीज़ ने। एंडोरा दोनों की 190वीं मैंबर कंट्री है और दोनों का हैडकुआटर भी वाशिंगटन DC के विच है। AIIB और NDB दोनों का हैडकुआटर चाइना के विच है। AIIB का हैडकुआटर बीजिंग चाइना के विच है और NDB का शंघाई चाइना के विच है।
AIIB ਦੇ ਵਿੱਚ 103 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ NDB ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। AIIB ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜਿਮ ਲਿਕੁਇਨ, NDB ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਾਰਕੋਸ ਤ੍ਰਿਓਜ਼ੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੋਚੈਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸੋਚੈਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ। ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਚੈਮ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ N ਹਿਰਨਦਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਗੇ। N ਹਿਰਨਦਾਨੀ ਔਰ ਵਿਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ N ਹਿਰਨਦਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕਿੱਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ। ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕਿੱਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਾਨਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀਪ ਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਾਨਮ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੁਬਰਤ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸੈਂਸਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਐਨੀਮਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੈਟਰਨ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਉसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਹਰਾ 2 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ MP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਲਥ ਔਰ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਹਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਟੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ to commemorate the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose on 23rd January under the chairmanship of basically ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 23rd ਜਨਵਰੀ 1897 ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1897 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 125ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ 125ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 400ਵੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ 400th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 400ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਿਓਪਾਰਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਓਪਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
तकरीबन 12,852 लियोपार्ड्स ने, जिहड़ी कि पुराने एस्टीमेट तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तकरीबन 60% तक पॉपूलेशन जी 40% कह सकते हैं कि इंक्रीज़ हुई है। 8,000 तो 12,000 हो चुकी है। ठीक है। 2014 एमपी गवर्नमेंट, एमपी कर्नाटका और महाराष्ट्र, एमपी कर्नाटका और महाराष्ट्र, ये तीन ऐसी स्टेट्स ने जिथे सब तो ज़्यादा लियोपार्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तेंदुए पाए जाते हैं। हुण एक चीज़ डिस्कस कर लें कि क्वेश्चन किस तरीके नाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन एक तो पूछा जा सकता है कि लियोपार्ड्स किन्ने ने, 12,852 किहड़ी स्टेट दे विच सब तो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो एमपी दे विच। दूसरी चीज़, लियोपार्ड्स के बारे 3 इंपोर्टेंट होर चीज़ां पूछिया जा सकदियां ने। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लियोपार्ड डे, इंटरनेशनल लियोपार्ड डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया गया? रिसेंटली आप डिस्कस किया 23 अक्तूबर को, 23 अक्तूबर इंटरनेशनल लियोपार्ड डे ऑब्जर्व किया गया। नैक्सट क्वेश्चन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड है जिहड़ा किहड़ी स्टेट का स्टेट एनीमल है? तो किहड़ी स्टेट का स्टेट एनीमल है? हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनीमल है स्नो लियोपार्ड। लेकिन स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर है जिहड़ा, स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर है जिहड़ा, ये कित्थे बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है उत्तराखंड दे विच, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट दे विच बनाया जा रहा है। ठीक है जी, ये याद रखांगे। गंगोत्री नैशनल पार्क दे विच इसनूं बनाया जा रहा है। इस तो इलावा ये किहड़ी कंट्री की हैल्प के नाल बनाया जा रहा है? ये नीदरलैंड की हैल्प के नाल बनाया जा रहा है। सारे फैक्ट याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेंगे। इस तो इलावा धर्मेंद्र प्रधान ने जिहड़े पैट्रोलीयम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर, इन्हां द्वारा इनोग्रेट किया गया 8वां ऑयल एंड नैचुरल गैस प्रोडक्शन प्लांट इन बंगाल बेसिन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बंगाल बेसिन दे विच 8वां ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया है। पैट्रोलीयम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर द्वारा इसनूं इनोग्रेट किया गया, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। नैक्सट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेसर हैज़ वॉन फर्स्ट प्राइज एट इनोवेटेड फॉर SDG कॉन्टेस्ट बाय UNDP एसलेटर लैब इंडिया। UNDP की गल करते हैं, न्यूयॉर्क के हैडकुआटर है, आप डिस्कस किया हुआ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस तो इलावा UNDP की एसलरेटेड लैब इंडिया, एसलरेटेड लैब इंडिया द्वारा एक कॉन्टेस्ट जारी किया गया। कॉन्टेस्ट का नाम इनोवेटेड फॉर SDG, इनोवेटेड फॉर SDG। इन्होंने अवार्ड दिता, 5,000 की प्राइज मनी है, इंपोर्टेंट रहेगी। अवार्ड किन्ना ने जितया? IIT दिल्ली दे, IIT दिल्ली के एक प्रोफैसर द्वारा जितया गया है। और किस चीज़ के लिए जितया गया वो काफ़ी इंटरस्टिंग है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ऑप्शन से रिलेटेड न्यूज़ ने जड़ियाँ वो डिस्कस कर लेने पहले कि IIT रुड़की द्वारा की डेवलप किया गया सी? प्राण वायु वेंटीलेटर यूनिसेवियर, यूनिसेवियर भी डेवलप किया गया सी। IIT मद्रास द्वारा मैडिकैब, सब तो इंपोर्टेंट चीज़ रहेगी, मैडिकैब जी डेवलप की सी, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिहड़ा IIT मद्रास द्वारा। ठीक है जी। इस तो इलावा IIT मद्रास द्वारा NDRF रैंकिंग नूं टॉप किया गया सी, अटल रैंकिंग नूं भी टॉप किया गया सी IIT मद्रास द्वारा। IIT दिल्ली द्वारा कोरोसोर किट बनाई गई सी। IIT गुवाहाटी द्वारा फ्लाइजी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई सी। IIT गांधीनगर द्वारा प्रोजैक्ट आईसैक लॉन्च किया गया सी, सब तो इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा चैस्ट एक्सरे तो कोविड-19 डिटैक्ट करने के मैथड्स भी IIT गांधीनगर द्वारा ही डेवलप किए गए सी। ठीक है जी। न्यूज़ डिस्कस करते हैं। द इनोवेशन ऑफ प्लांट बेस्ड मॉक एग बाय प्रोफैसर काव्या दशोरा, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली। की चीज़ है कि वैजीटेरियन, फॉर एग्जाम्पल जोड़े वेजिटेरियन लोग ने, जोड़े मेरे वर्गे लोग कह सकते हैं कि जोड़े वेजिटेरियन लोगों ने उन्होंने न्यूट्रीशन चाहिए, बॉडी के लिए न्यूट्रीशन तो चाहिए ही है। ठीक है, तो हम जोड़े लोग कहते हैं भी एग्स के काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रीशन होंगे। ठीक है, तो एग्स खाने चाहिए ने। ठीक है, इसी के लिए इन्होंने की बनाया, एक मॉक एग बनाया, प्लांट बेस्ड मॉक एग। ठीक है, यानी कि एक वैजीटेरियन एग कह सकते हैं। एक वैजीटेरियन एग डेवलप किया इन्हों द्वारा, प्लांट तो एग डेवलप किया गया प्रोफैसर काव्या दशोरा द्वारा, प्रोफैसर काव्या दशोरा जो कि IIT दिल्ली के सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के विच ने, इन्हों द्वारा डेवलप किया गया। इस करके इन्हों फर्स्ट प्राइज दिता गया है इनोवेटेड फॉर SDG कॉन्टेस्ट बाय UNDP। ठीक है जी। प्राइज मनी इंपोर्टेंट रहेगी $5,000 की। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड ATAGS हॉविट्ज़र। ATAGS हॉविट्ज़र, पहले तो ATAGS हॉविट्ज़र की चीज़ है, ठीक है। दूसरी, इसनू किसने डेवलप किया है, ठीक है। होर भी चीज़ां इस रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले इसका आंसर है 5th ऑप्शन बोथ 2 and 3, यानी कि भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड दोनों के बारे डिस्कस करते हैं। की चीज़ है कि DRDO ने इसनू टेस्टिफाइड किया है। पहली चीज़ एक की है, एक एडवांस्ड टावर आर्टिलरी गन है, एडवांस्ड टावर आर्टिलरी गन सिस्टम है हॉविट्ज़र। टेस्टिफाइड कित्थों किया गया तो ITR बालासोर उड़ीसा तो। 3 क्वेश्चन। DRDO के फैक्ट इंपोर्टेंट बन जाएंगे। दिल्ली के हैडकुआटर है 1958 के बनाया गया सी और हैड कौन ने, G सतीश रेड्डी ने। इस तो इलावा स्ट्राइक रेंज कितनी है तो 48 किलोमीटर। किन्ना द्वारा बनाया गया है तो भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा। भारत फोर्ज का हैडकुआटर कित्थे है, पुणे दे विच। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का हैडकुआटर कित्थे है, हैदराबाद दे विच। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिक्लेयर्ड दैट केसेस ऑफ न्यू वेरिएंट ऑफ COVID-19 हैज़ बीन फाउंड इन देयर कंट्री। किहड़ी कंट्री ने अनाउंस किया है कि COVID-19 के नवे तरीके के केसेस उन्होंने विच देखे जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली COVID-19 का एक नवा वेरिएंट लभ्या गया, एक अलग तरीके का COVID-19 वायरस लभ्या गया है, ठीक है, डिटेक्ट किया गया, जिसके रिलेटेड WHO द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिता गया, ठीक है। ये ज़्यादा न्यूज़ के विच रहे, इस करके डिस्कस कर रहे हैं। तो UK अपना आंसर होएगा UK। हुण क्वेश्चन इस तरीके नाल पूछे जाते काफ़ी रेयर चांसिस ने, क्योंकि इस तरीके के काफ़ी कह सकते हैं कि गल्लां चल रही ने इस चीज़ के बारे। इस तो इलावा वैक्सीन की अगर आप गल करते हैं तो हर एक कंट्री अपनी डिफरेंट तरीके की वैक्सीन लॉन्च कर रही है, जिहड़ी ज़्यादा हाईलाइटर रहेगी उसके उत्ते क्वेश्चन पूछे जाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फीजर बायोटेक बारे आप डिस्कस किया कि सब तो पहली कंट्री जिसने अप्रूवल दी थी तो UK रही सी, ठीक है जी। दूसरी कंट्री बहरेन रही सी, ठीक है। पहली 2 ही पूछी जाएगी, उस तो बाद नहीं पूछी जाएगी, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं तो UK रिलेटेड फैक्ट पूछे जरूर जाएंगे, क्योंकि UK काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के विच रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जिहड़े इंडिया की विजिट ते आ रहे हैं रिपब्लिक डे वाले दिन, ठीक है जी। इन्हों द्वारा ही इंडिया को इनवाइट किया गया G7 समिट 2021 के लिए, जो कि UK होस्ट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा UK G7 का समिट किहड़े साल होस्ट कर रहा है, 2021 किनवा एडिशन है। इत्थे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि यह किनवा एडिशन होएगा, एडिशन दसना है, ठीक है जी। G7 के आप सारे समय डिस्कस कर ले 50th एडिशन तक डिस्कस किए, 45th तो लैके 50th एडिशन डिस्कस किया अपने कि किहड़ी कंट्री इसनू होस्ट करेगी। इस तो इलावा UK के फॉरेन सैक्रटरी से इंडिया की विजिट से सीगे डोमिनिक रैब, जिन्हों द्वारा बेंगलुरु के नाल बेंगलुरु के विच विजिट की गई और एग्रीमेंट साइन किए गए बेंगलुरु कर्नाटका सरकार के नाल, किस दे लई हाईयर एजुकेशन के फील्ड के विच। ये याद रखांगे, ठीक है जी। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट बनने, याद रखने। इस तो इलावा बाकी कंट्रीज़ के विच UAE और श्रीलंका रिलेटेड एक न्यूज़ है और वियतनाम रिलेटेड आप डिस्कस किया कि जी वियतनाम कंट्री है, इन्हों के नाल ये फर्स्ट एशियन कंट्री बनी जिन्हों के नाल इंडिया ने वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया। इस दे विच एक इंपोर्टेंट एग्रीमेंट किया गया, इंपोर्टेंट एग्रीमेंट किया गया है, उसके बारे डिस्कस कर लें। सब तो पहले UAE की गल करिए तो इंडियन ओशन रिम एसोसीएशन आयोरा के बारे आप डिस्कस किया रीसेंटली। की डिस्कस किया कि फ्रांस इस दी मैंबर बनी है, फ्रांस कंट्री आयोरा की मैंबर बनी है। किस करके बनी सी, रीयूनियन आइलैंड करके बनी सी। आयोरा जिहड़ा ग्रुप है 1997 के विच बनाया गया सी। आयोरा इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाया सी। फ्रांस नूं जोड़ के इस दे विच 23 मैंबर कंट्रीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। इफैक्ट पहले तो आयोरा रिलेटेड याद रखांगे। आयोरा की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, आयोरा की 20th एडिशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ UAE। इत्थे क्वेश्चन बनेगा किन्ना दी चेयरमैनशिप के अंडर, UAE। जिस तरीके नाल ब्रिक्स समिट क्वेश्चन के पूछा गया एग्जाम के उसी तरीके नाल पूछा जा सकता है कि आयोरा समिट किन्ना दी चेयरमैनशिप के अंडर, तो UAE के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया वालों किन्ना ने पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया वालों मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स V मुरलीधरन द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया। वर्चुअल समिट सीगा, याद रखांगे। इस तो इलावा
थीम इंपोर्टेंट रहेगी प्रमोटिंग अ शेयर्ड डेस्टिनी एंड पाथ टू द प्रोस्पैरिटी ऑफ इंडियन ओशियन। इसी दे नाल श्रीलंका नू वाइस चेयरमैन बनाया गया है। श्रीलंका नू चेयरमैनशिप यूएई लवे है, तो वाइस चेयरमैनशिप किहड़ी कंट्री लवे है? श्रीलंका दे लवे 2021 तो लैके 2023 तक दे लई। ठीक है जी। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, डिस्कस किया ਆਪਾਂ ਨੇ। हैडकुआटर कित्थे है? आयोरा का हैडकुआटर है एबीन मॉरीशियस दे विच, एबीन मॉरीशियस दे विच हैडकुआटर है। वियतनाम दे नाल इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है 12 हाई स्पीड कोस्ट गार्ड शिप्स दे लई, कि इंडिया की करेगा हाई स्पीड कोस्ट गार्ड शिप बनाएगा और वियतनाम नू देगा। किन्ने देगा? 12 देगा। कौन बनाएगा इसनू? L&T कंपनी बनाएगी। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 क्वेश्चन कि इंडिया केड़ी कंट्री नू हाई स्पीड कोस्ट गार्ड शिप दे रहा है? वियतनाम नू। पहला क्वेश्चन किन्ने शिप्स दे रहा है? 12 शिप्स। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन कि केड़ी कंट्री इसनू बना रही है और केड़ी कंपनी इसनू बना रही है? तो L&T कंपनी बना रही है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ MOU विद सिडबी। सिडबी के नाल MOU साइन किया गया है टू बूस्ट MSME सैक्टर। MSME सैक्टर नू बूस्ट करने के लिए MOU साइन किया गया। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने? तो असम गवर्नमेंट ने। असम रिलेटेड ही आप डिस्कस करके हटे सी कि ADB ने लोन प्रोवाइड किया है हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, और हम सिडबी के नाल भी MSME सैक्टर नू बूस्ट करने के लिए असम गवर्नमेंट द्वारा ही एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है जी। पहले असम रिलेटेड कुछ पुरानी न्यूज़ डिस्कस कर लेंगे, बाकी स्टेट्स रिलेटेड ऑप्शन रिलेटेड न्यूज़ ने वो भी डिस्कस करांगे। सिडबी की गल करते हैं, हैडकुआटर कित्थे है? सिडबी का हैडकुआटर लखनऊ दे विच है। पहले तो सिडबी इंपोर्टेंट रहेगा। हैडकुआटर कित्थे है? लखनऊ दे विच सिडबी का हैडकुआटर है। इस तो इलावा न्यूज़ अगर आप गल करिए तो असम के रिलेटेड पहले असम के रिलेटेड किहड़ी न्यूज़ आप डिस्कस की हुई ने, बिल्कुल रिसेंट दी डिस्कस करांगे, ज़्यादा पुरानियां नहीं डिस्कस करांगे। फॉर एग्जाम्पल अरुणोदय स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई है, हालांकि अनाउंसमेंट पहले की गई सी। इस तो इलावा असम ने रिसेंटली इजराइल के नाल एग्रीमेंट साइन किया सी। इजराइल के नाल एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वैजीटेबल लगाने के लिए असम द्वारा ही रूपसी एयरपोर्ट अनाउंसमेंट की गई सी कि रूपसी एयरपोर्ट रीजनल कनैक्टिविटी स्कीम के अंडर जनवरी 2021 तक शुरू कर दिता जाएगा। असम की तेजपुर लीची नू GI टैग दिता गया। असम ने अभिनंदन स्कीम और अरुंधति स्कीम नू भी लॉन्च किया सी। असम गवर्नमेंट असम दे विच तरुण गंगोई का नाम याद रखांगे। तरुण गंगोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सीगे, ज़्यादा टाइम तक सर्व करने वाले चीफ मिनिस्टर बने सी, और कह सकते हैं कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गंगोई के फादर भी सी। इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई सी, न्यूज़ दे विच रही सी। असम ने काओ हॉस्पिटल पहला नॉर्थ ईस्ट काओ हॉस्पिटल बनाया। कित्थे? असम के डिब्रूगढ़ दे विच। इंपोर्टेंट रहेगा, जिसका नाम रखा गया सी सुरभि आरोग्यशाला। ठीक है जी। बाकी स्टेट्स रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस कर लेने। सब तो पहले तेलंगाना रिलेटेड 2 न्यूज़ सीगियां, चलो एक अगे शिफ्ट हो गई होगी बाय मिस्टेक। तो तेलंगाना द्वारा इलैक्ट्रिक क्रूज़ लॉन्च किए गए ने हुसैन नगर लेक हैदराबाद दे विच। कि हैदराबाद दे विच बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लेक्स ने, तकरीबन 10 या 11 लेक्स ने आई थिंक, तो जिन्हों के विचों एक लेक है हुसैन नगर लेक। क्वेश्चन डायरैक्ट पूछा जाता है कि कीथम लेक कित्थे है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि रिसेंटली इसनू कह सकते हैं कि रामसर साइट्स दे विच ऐड किया गया। ठीक है। इस तो इलावा हुसैन नगर लेक, ठीक है, दमदमा लेक पूछी जाती है काफ़ी बार। ठीक है। तो इसी तरीके नाल हुसैन सागर लेक है किहड़ी स्टेट दे विच है? तेलंगाना हैदराबाद दे विच। इत्थे तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया इलैक्ट्रिक क्रूज सर्विस शुरू की जाएगी। जिस तरीके नाल अपने अयोध्या बारे डिस्कस किया सी कि अयोध्या दे विच क्रूज सर्विस शुरू की जाएगी। बिहार द्वारा 200 फीट ग्लास ब्रिज बनाया गया राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट दे विच इसनू बनाया जा रहा है, जिसनू इनोग्रेट किया जाएगा मार्च 2021 दे विच। ठीक है जी। राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र को अपनी पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी गई है पुणे दे विच, क्योंकि जिहड़ा शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कंपलैक्स है इसनू अपग्रेड किया गया है यूनिवर्सिटी दे विच। महाराष्ट्र की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शिव छत्रपति स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है गुजरात की गल करते हैं। दीन दयाल क्लिनिक्स अनाउंस किए गए हैं गुजरात गवर्नमेंट द्वारा सिटीज़ और टाउनस दे विच। दीन दयाल
क्लीनिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है इन विच स्टेट और यूटी चिलाई कलन फैसटिवल। चिलाई कलन फैसटिवल है जिहड़ा ये किहड़ी स्टेट या यूटी दे विच ऑबजर्व किया जा रहा है या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो आंसर होएगा अपना जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा तेलंगाना रिलेटेड न्यूज़ इत्थे है। चिलाई कलन फैसटिवल जम्मू एंड कश्मीर दे विच ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है जी। इस दे रिलेटेड एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, डिस्कस कर लें। इस तो इलावा एक तमिलनाडु रिलेटेड फैसटिवल के बारे डिस्कस करते हैं। सब तो पहले जम्मू एंड कश्मीर ने चिलाई कलन फैसटिवल ऑबजर्व कर रहा है। इसी दे नाल वर्ल्ड फिरन डे याद रखांगे, वर्ल्ड फेरान डे 21 दिसंबर को ऑबजर्व किया जाता है। फिरान की होंदा है? फिरान एक कुर्ता होंदा है। फिरान लंबे कुर्ते होंदे ने जिहड़े कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों द्वारा पाए जाते हैं। आप नॉर्मली देखे होंगे तुसीं कि जिहड़े जम्मू एंड कश्मीर के लोग ने लंबे तरीके कुर्ते पाते हैं, जिहड़े फीमेल्स ने उन्होंने द्वारा भी उसी तरीके के कुर्ते बस विद एम्ब्रॉयडरी पाए जाते हैं। वो जिहड़े कुर्ते ने उन्होंने फिरान कहा जाता है। ਉਹ इसी दे ਲਈ वर्ल्ड फेरान डे ऑबजर्व किया जाता है। और ये फैसटिवल भी फेरान के नाल ही रिलेटेड है। चिलाई कलन फैसटिवल जम्मू एंड कश्मीर दे विच। ठीक है। बेसिकली फैसटिवल्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोजार फैसटिवल रिसेंटली डिस्कस किया सी लद्दाख दे विच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हालांकि इसनूं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दे विच भी हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दे विच भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है जी। चैरी ब्लूजम फैसटिवल आप डिस्कस किया हुआ है मेघालय दे विच। ठीक है। रिसेंटली आप डिस्कस किया सी फोंग लबाहो फैसटिवल सिक्किम दे विच। लुई नगाई नी फैसटिवल डिस्कस किया सी मणिपुर दे विच। लिली फैसटिवल भी मणिपुर दे विच अपने डिस्कस किया सी। ठीक है जी। तानसेन समारोह डिस्कस किया सी MP दे विच। ठीक है जी। इस तरीके नाल डिफरेंट फैसटिवल्स ने पूछे जाते हैं। अच्छा एक फैसटिवल पूछते हैं हिमाचल प्रदेश दे विच रीसेंटली फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया सी, काफ़ी फेमस। उस फैसटिवल का नाम दसने कमेंट बॉक्स दे विच। नेक्स्ट है अंडेमान निकोबार की गल करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि एक सेंटेलीज ट्राइब है, इसनूं एंडेंजर्ड ग्रुप दे विच रखा गया। सेंटेलीज ट्राइब है जिहड़ी अंडेमान निकोबार के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दे विच पाई जाती है। अंडेमान निकोबार के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दे विच पाई जाती है। यह जी ट्राइब है इसनूं एंडेंजर्ड ग्रुप दे विच रखा गया। बेसिकली जी ट्राइब है इस ट्राइब के तकरीबन 100 क लोग ही पाए जाते हैं। इस ट्राइब के टोटल ही 100 क लोग ने, 100 तो भी घट लोग ने, इसी करके इसनूं एंडेंजर्ड ग्रुप के रखा गया है। ये जी ट्राइब है ये सिर्फ अंडेमान निकोबार के पाई जाती है। 10 डिग्री चैनल इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखांगे कि अंडेमान निकोबार नूं डिफरेंट करने वाली चैनल किहड़ी है? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है। इस तो इलावा अंडेमान निकोबार के बारे जिहड़े फैक्ट्स ने वो इंपोर्टेंट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इत्थे दे नैशनल पार्क्स इंपोर्टेंट बन जाएंगे। काफ़ी नैशनल पार्क्स ने इत्थे, नॉर्थ बटन नैशनल पार्क, साउथ बटन नैशनल पार्क, सैडल पीक नैशनल पार्क, रानी झांसी नैशनल पार्क, ये इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है जी। तमिलनाडु की गल करते हैं तो EK पलानास्वामी चीफ मिनिस्टर द्वारा पोंगल फैसटिवल के लिए 2500 रुपये कैश और गिफ्ट हैम्पर अनाउंस किया गया। ठीक है जी। पोंगल फैसटिवल एक कह सकते हैं कि हारवेस्ट फैसटिवल है, जिस तरीके अपने पंजाब दे विच बैसाखी हारवेस्ट फैसटिवल के रूप दे विच मनाया जाता है, उसी तरीके नाल पोंगल तमिलनाडु का हारवेस्ट फैसटिवल है। इस दे विच लोकां नूं 2500 रुपये कैश और गिफ्ट हैम्पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट द्वारा अपनी पहली रेस्क्यू और रीहैबिलिटेशन सेंटर ओपन किया गया मंकीज़ के लिए रेस्क्यू और रीहैबिलिटेशन सेंटर तेलंगाना का पहला कित्थे चिंचोली विलेज दे विच। और अगर इंडिया की गल करते तो इंडिया का दूसरा इस तरीके का सेंटर है। पहला कित्थे है इंडिया का? हिमाचल प्रदेश के विच। मंकीज़ के लिए मंकीज़ के लिए रीहैबिलिटेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश के विच पहला है, दूसरा तेलंगाना दे विच। सिमिलर तरीके नाल अपने एलीफेंट रीहैबिलिटेशन सेंटर डिस्कस किया हुआ है केरला दे विच। ठीक है। होर भी डिफरेंट रीहैबिलिटेशन सेंटर डिस्कस किए हैं अपने। वल्चर रीहैबिलिटेशन सेंटर गोरखपुर UP दे विच। ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए होर भी काफ़ी ने आप डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है जी। आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।